ایک بڑا وبال عارضی طور پر ٹل گیا، پیٹرولیم ڈیلرز نے ہڑتال مؤخر کر دی۔ مشیر پیٹرولیم نے ڈیلرز مارجن پر نظر ثانی کے لیے کمیٹی بنا دی۔ کمیٹی 48 گھنٹے میں مارجن کی ورکنگ بنائے گی۔ ڈیلرز نے تحریری یقین دہانی پر ہڑتال مؤخر کی۔ پیٹرول پمپ مالکان کا 5% کمیشن اضافے پر اصرار۔ ایک بڑا وبال عارضی طور پر ٹل گیا، پیٹرولیم ڈیلرز نے ہڑتال مؤخر کر دی۔ مشیر پیٹرولیم نے ڈیلرز مارجن پر نظر ثانی کے لیے کمیٹی بنا دی۔ کمیٹی 48 گھنٹے میں مارجن کی ورکنگ بنائے گی۔ ڈیلرز نے تحریری یقین دہانی پر ہڑتال مؤخر کی۔ پیٹرول پمپ مالکان کا 5% کمیشن اضافے پر اصرار۔ فیصل آباد میں پیٹرول پمپ مالکان کی جانب سے ہونے والی ہڑتال 48 گھنٹے کے لیے مؤخر کر دی گئی۔ پاکستان پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن کی کال پر مؤخر کی گئی۔ حکومت کی جانب سے تحریری یقین دہانی کروا دی گئی۔ پیٹرولیم ڈیلرز نے تحریری یقین دہانی کے بعد ہڑتال مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا۔ پیٹرول پمپ مالکان کا 5% کمیشن میں اضافہ کرنے پر اصرار۔ 48 گھنٹے کے اندر کمیٹی دوبارہ بیٹھ کر ڈیلر کمیشن کو حتمی شکل دے گی۔ مشیر پیٹرولیم نے ڈیلرز کا مارجن پر نظر ثانی کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی۔ مذاکرات کا حتمی راؤنڈ 48 گھنٹے بعد ہوگا۔ کمیٹی 48 گھنٹوں میں ڈیلرز کے مارجن کی ورکنگ بنا کر دے گی۔ کراچی میں ہونے والے مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے۔ پیٹرول پمپ مالکان صدر رانا فیاض حسین نے بھی ہڑتال مؤخر کرنے کا اعلان کیا۔ رانا فیاض نے مستقبل میں بھی مرکزی تنظیم کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کرنے کا اعلان کیا۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، دریائے چناب میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ چنیوٹ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ چنیوٹ سے 1.5 لاکھ کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے۔ دریائی پٹی پر واقع آبادیوں سے انخلا کرا لیا گیا۔ موسلادھار بارش نے شہر میں جل تھل ایک کر دیا۔ سڑکیں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ دیکھتے ہیں وقار گھمن کی رپورٹ۔ دریائے چناب میں چنیوٹ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ چنیوٹ سے 1,50,000 کیوسک کا ریلا تریمو کی جانب رواں دواں ہے۔ ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضلعی محکمے متحرک ہیں۔ دریا کنارے مقیم دیہاتوں کی سرویلنس کی جا رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر آصف رضا کی ہدایت پر امدادی ٹیمیں لوگوں اور مویشیوں کا انخلا کروا رہی ہیں۔ لوگوں کو ریلیف کیمپس میں منتقل کر دیا گیا۔ دوسری جانب شہر میں موسلادھار بارش نے ہر طرف پانی پانی کر دیا۔ فیصل آباد روڈ، لاہور روڈ، سرگودا روڈ، جنگ روڈ، گڑا محلہ فرنیچر مارکیٹ، جمرہ چوک، مندر روڈ، ٹھٹھی محلہ، غفور آباد، دل خوشاب پارک، سیشن کورٹ، کچہری، ریسٹ ہاؤس احاطہ میں بھی پانی جمع ہو گیا۔ پانی سے گاڑیاں بند، مسافروں کو پریشانی کا سامنا رہا۔ ضلع انتظامیہ کی مشنری بھی نکاسی آب کے لیے فیلڈ میں متحرک رہی۔ ڈی واٹرنگ سیٹس کی مدد سے پانی نکالنے کا آپریشن کیا گیا۔ کیمرہ مین اورنگزیب کے ساتھ وقار گھمن، سٹی 41 چنیوٹ۔ بوانا کے مقام پر چناب پھر بپھر گیا۔ اونچے درجے کی سیلابی صورتحال، پانی قریبی آبادیوں اور دیہاتوں میں داخل۔ معزز حامل فتح کوٹ، تاجہ، نو ٹھٹھا کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ فخر دیوان بھٹہ کی رپورٹ۔ بوانا کے مقام پر چناب میں سیلابی صورتحال پیدا ہوگی۔ 1,50,000 کیوسک سے زائد کے ریلے سے نشیبی علاقے شدید متاثر۔ سیلابی پانی اڈا کوپ، محمدی شریف، ٹھٹھا، نارا، موزہ سجن کا اور دیگر آبادیوں میں داخل ہونے لگا۔ علاقے کے لوگ سیلابی پانی میں محصور امدادی کارروائیوں کے منتظر۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں 4 روز سے بجلی غائب، ہزاروں ایکڑ پر فصلیں ڈوب گئیں۔ چارے کی فصل شدید متاثر، جانور بھوکے مرنے کا خدشہ۔ سیلابی پانی میں محصور اہل علاقہ انتظامیہ پر پھٹ پڑے، بولے حکام کی امدادی کارروائیاں صرف فوٹو سیشن تک محدود ہیں، ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے۔ انتظامیہ کی طرف سے ہمارے لیے کوئی اقدامات نہیں ہوئے۔ ہماری بجلی بند ہے، ہم بہت سی چیزوں سے محروم ہیں۔ ریسکیو والے آتے ہیں، فوٹو لے کر چلے جاتے ہیں، ہمارے لیے انہوں نے بھی کوئی انتظام نہیں کیا۔ ہر چیز سے محروم ہے، ہمیں کھانے کی کوئی چیز میسر نہیں ہو رہی، کوئی راستہ نہیں مل رہا، ہزاروں ایکڑ تباہ ہو چکے ہیں، تو بہت مشکل ہے ہمارے لیے۔ اہل علاقہ نے اعلیٰ حکام سے بر وقت امدادی کارروائیوں، وافر مقدار میں خوراک و ادویات کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین عارف حسین کے ساتھ فخر دیوان بھٹہ، سٹی 41 بوانا۔ جھنگ کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کی سطح مزید بلند۔ چنیوٹ سے پانی کے بڑے ریلے کی جھنگ کی جانب پیش قدمی۔ براج پر لگ بھگ 86,000 کیوسک کا ریلا موجود۔ حفاظتی بند میں موجود کئی علاقے پانی میں ڈوبنے لگے۔ جھنگ کے مقام پر دریائے چناب کی سطح مزید بلند ہونے لگی۔ چنیوٹ سے لگ بھگ 1,40,000 کیوسک کا بڑا ریلا جھنگ پہنچ گیا۔ تریمو براج پر پانی کا بہاؤ 86,000 کیوسک ہے۔ جھنگ میں حفاظتی بند کے اندر موجود نشیبی علاقے بھی ڈوبنے لگے ہیں۔ کھروڑا باکر، کھولڑا، بستی ملاح سمیت متعدد دیہاتوں کا زمینی رابطہ منقطع۔ چنیوٹ سے آنے والے پانی کے ریلے سے متعدد علاقوں میں نچلے درجے کی سیلابی صورتحال درپیش ہے۔ اس وقت جو ہے نا مالی مشکلات بھی ہے، مویشی سارے تقریباً لوگ باہر گئے ہیں، گھر سے بھی باہر نکل گئے ہیں لوگ۔ آگے کوئی بندہ نہیں گیا، کوئی انتظامیہ نہیں گیا، یا کوئی ایم پی ایم این اے ہمارا یا کوئی بڑے جو لوگ ہیں۔ جھنگ میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر چارے کا مسئلہ سر اٹھانے لگا ہے۔ مویشی پال حضرات کو چارے کی فکر ستانے لگی۔ سیلابی پانی زیادہ روز کھڑا رہا تو جانوروں کی نقل مکانی کرنا پڑے گی۔ کیمرہ مین علی عباس کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 جھنگ۔
फैसलाबाद में बादल बरसे, खूब बरसे, मौसम तो खुशगवार हो गया मगर बारिशी पानी की बर वक्त निकासी न होने से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। बारिशी पानी से मुतअद्दिद इलाके ज़ेरे आब आ गए। गलियां, रोड, बाजार, नदी नालों में तब्दील शाहराहों पर जमा बारिशी पानी ने ज़िला इंतज़ामिया और वासा की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में मिल्लत रोड पर बारिश के बाद पानी जमा, खवातीन निकासी आब ना होने पर परेशान। कहती हैं गुजरने में मुश्किल हो रही है। बारिश के बाद हमेशा सड़क की यही सूरत हाल होती है। जब भी बारिश होती है तो फैसलाबाद के जो मिल्लत रोड का है, जो रोड है वो बहुत ज़्यादा मतलब पानी से भर जाते हैं और पानी तो पानी होता है और गंदा पानी भी बाहर आ जाता है गटरों में से, तो इस वजह से बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बारिशी पानी से ग्रीन टाउन समेत फैसलाबाद के मुतअद्दिद इलाके डूब गए। ग्रीन टाउन में बर वक्त निकासी आब ना होने पर गलियां और मेन डबल रोड ज़ेरे आब। इलाका मकीनों ने साबिक MPA महर अहमद रशीद से अपने हल्के पर तवज्जो देने और निकासी आब का मसला हल करने का मुतालबा कर दिया। घंटा हो गया इसका, रश्क को धक्के लगाते हैं, मोटरसाइकिलों को निशाताबाद में कोई मदद नहीं करता, कोई आता नहीं, कोई गड़िया नहीं करता, सारे धक्के लवाते ऐसे थके खले हैं। शहर में होने वाली बारिश मरीजों के लिए जहमत बन के एलाइड अस्पताल, मेडिकल इमरजेंसी और अमराज कल्ब के वार्ड के बाहर पानी जमा हो गया। मरीज और तमामदार बारिशी पानी से गुजर कर वार्ड तक जाने पर मजबूर। डिवीज़न का सबसे बड़ा अस्पताल होने के बायस भी इसकी हालत ये है कि जो जरासीम लेके जा रहे हैं मरीज़, पहले ही इस तरह वहाँ तक पहुँचना ही नामुमकिन है। हो सकता है जाते जाते मरीज़ की कोई बड़े हादसे का सबब बन जाए। नाक़िस इंतज़ाम की वजह से अस्पताल के नकासियाब की जो तस्वीर है यहाँ कर दिया। फैसलाबाद में बारिश ने वासा की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। इकबाल स्टेडियम के तरफ बारिशी पानी के बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। बारिश रुकने के घंटों बाद भी निकासी आब के लिए बारिश से जुमरा रोड पानी में डूब गया। जी भाईजान, हम सुबह की बारिश हुई है, कारोबार हमारा ठप हुआ है, सुबह की रेडी खड़ी है, कोई गाहक नहीं आ रहा, हम बेरोजगार खड़े। वासा का कोई बंदा नहीं यहाँ पे आया पानी से निकालने। जी भाईजान, इधर से पानी बहुत है, कोई बंदा नहीं आया इधर से पानी निकालने वाला। हम सुबह के इधर जलील हो रहे हैं। आम शहरों पर बारिशी पानी की वजह से गाड़ियां, मोटरसाइकिल बंद होने लगी। शहरियों ने वासा से बर वक्त इक़दामात का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम और साथी रिपोर्टर्स के साथ मरीम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। बरसात की रिमझिम, कहीं बादल गरजे, कहीं मीना बरसा। फैसलाबाद में शदीद बारिश से निशाताबाद के मकाम पर रेलवे ट्रैक पर पानी चढ़ गया। ट्रैक से मुल्हका भाईवाला रोड भी बारिश पानी में गुम। शहरियों ने इंतजामी इक़दामात नाकाफ़ी करार दे दिए। कहते हैं जब भी बारिश हो सड़क और ट्रैक पर पानी आ जाता है। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। बारिश से जहां मुतअद्दिद अहम शाहराहें ज़ेरे आब आ गईं, वहीं निशाताबाद के मकाम पर फैसलाबाद ता लाहौर रेलवे ट्रैक भी बारिशी पानी में डूब गया। लोगों का कहना था कि महकमा रेलवे की जानिब से कोई इंतजाम नहीं किया जाता। बारिश में अक्सर सड़क और रेलवे ट्रैक पर पानी जमा हो जाता है, जो हादसे का सबब भी बन सकता है। हल्की जी बारिश होंदी है ते इत्थे इस तरह ही पानी चढ़दा है। कई एक दिन इत्थे जाने कि बीबी लाइन क्रॉस करन लगी, जाने भजदे भी ਉਹਨੂੰ खिंच के कढ़िया पानी दे विचों। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾत कोई इंतजामिया कोई ਇਹਦਾ इंतजाम नहीं करती। दूसरी जानिब भाईवाला रोड से भी बारिशी पानी रेलवे ट्रैक पर आने लगा। शहरियों ने इंतजामात नाकाफी करार दे दिए। आने वाले वक्तों के में भी ये आदमी जो एक्सीडेंट की वजह से परेशान होते हैं वो एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि सारी सड़क इसी तरह पानी की वजह से ओवरफ्लो हुई है और गुजरने वालों को परेशानी होती है। इस वजह से अक्सरियत जो है एक्सीडेंट होते हैं यहाँ। रेलवे ट्रैक पर जमा बारिशी पानी खतरे की घंटियां बजा रहा है। शहरियों ने जिले इंतजामिया और महकमा रेलवे से निकासी आब यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अशफाक बुखारी के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार, गर्मी के सताए शहरी सुहाने मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए नरवाला रोड पर कायम मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर पहुँच गए। बात करने के लिए इस हवाले से मौजूद हैं हमारे साथ अहमद साद। जी अहमद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, दिन भर की बारिश के बाद शहर भर का जो मौसम है वो खुशगवार हो गया। तो दूसरी जानिब जो है जुमे का रोज़ है, फैसलाबाद में जो है वो जो कारोबारी तबका है उन्हें भी छुट्टी है। तो इस हवाले से शहरियों की बड़ी तादाद ने जो है नारवाला रोड पे कई मुख्तलिफ खावा पॉइंट्स का रुख कर लिया। शहरी जो है अपने दोस्तों के हमराह हैं यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ किस्म के चटपटे खाबे खा के जो है उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और शहरियों का भी ये कहना है कि एक छुट्टी भी है तो दूसरी जानिब जो है मौसम भी काफ़ी अच्छा है। तो शहरी जो है वो दोनों चीज़ों से जो है लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए शहरियों ने मुख्तलिफ पॉइंट्स का यहाँ पे रुक किया। इसी वाले से यहाँ पे शहरी हमारे साथ कुछ मौजूद हैं जो खाते पीते हुए हमें नज़र आ रही हैं। अच्छा भाईजान बताइएगा, आज छुट्टी का भी रोज़ है फैसलाबाद में, दिन भर की बारिश के बाद हबस था पर अब थोड़ी सी हवा भी चलने लगी, मौसम भी अच्छा हो गया, तो क्या खा पी के एंजॉय कर रहे हैं? हाँ जी, आज छुट्टी का दिन था और सुबह भी जैसे आप बता रहे बारिश हुई थी तो उस वजह से मौसम भी अच्छा था और दोस्तों के साथ हमने के गैदरिंग थी दोस्तों की, तो हमने इधर आने का फ़ैसला किया और यहाँ पे आगे एंजॉय कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं।
शहरी भी कह रहे हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो खाबे खा के जो है मौसम के साथ साथ छुट्टी को भी इंजॉय कर रहे हैं। हम यहाँ पे जो है शहरियों ने नरबरा रोड पर मुख्तलिफ जो है यहाँ पे फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया है। शहरियों का भी यही होता है कि रात के पैर जो अपने दोस्तों के साथ जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो है खाबे खा के उनसे जो है हम लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो इस हवाले से शहरी भी जो है वो दोनों जो है वो मज़े ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया अहमद साद अपडेट करने के लिए। आपको बताएं फैसलाबाद बाईपास बरास्ता सतियाना मोटरवे M3 तक 2 रोया सड़क के लिए 1 अरब 62 करोड़ 50 लाख मंजूर। ज़मीन की खरीदारी के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सेक्रेटरी CNW को मरासला जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से स्कीम और फंड्स मंजूर किए गए हैं। फैसलाबाद सतियाना रोड की स्कीम विफाक की सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल। सड़क की तामीर नौ के लिए NOC जारी करने की हिदायत कर दी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म स्कीम का संग बुनियाद रखेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती चीनी गायब, 2 माह बाद भी फराहमी मुमकिन ना हो सकी। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 90, मार्केट में 150 रुपए तक पहुंच गई। शहरी बाजार से महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर। यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुरनोश की कमी का मसला हल ना हो सका। जबकि यूटिलिटी स्टोर पर एक तरफ चीनी नायाब हो गई, दूसरी जानिब चावल भी दस्तयाब नहीं। मुहर्रम में शहरी नजर न्याज के लिए चावल और चीनी का वाफिर मिकदार में इस्तेमाल करते हैं। शहरियों का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुरनोश की फराहमी ना होने के बाईस मार्केट से महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी 90, मार्केट में 150 रुपए तक पहुंच गई। कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो इस वक्त यही एक यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती चीनी मिलते 91 रुपये रेट है, वो भी यहाँ पर नहीं दस्तियाब, जाके आम मार्केट में 150 रुपये में ख़रीदनी पड़ती है। और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि चीनी की कीमत को तो कम किया जाए, क्योंकि ये रोज़मर्रा की चीज़ में इस्तेमाल होती है। अब मुहर्रम उल हराम का महीना है, नियाज पकानी होती है, तो इस वक्त मुहर्रम के महीने में भी इन्होंने चीनी का एक तो दस्तियाब नहीं, और ऊपर से सुनने में आया है कि इसका चीनी का रेट भी बढ़ा रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर डीलर्स का कहना है हुकूमत की जानिब से बर वक्त टेंडर नहीं किए गए, जिसके बाइस अशिया खुरनोश की फराहमी में तातुल आया है। शहरियों ने इंतजामिया से यूटिलिटी स्टोर पर चीनी की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, CT41 जंग। धागा महंगा, बिजली भी महंगी, ऊपर से रिफंड्स को लग गई ब्रेक। ऐसे में करें तो क्या करें? फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स ने सर पकड़ लिए। कहते हैं बिजली कीमतों में दे पर दे इजाफा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए तबाहकुन है। धागा महंगा, बिजली की कीमतें भी पहुंच से बाहर हो गईं। सनतकारों का कहना था कि बिजली की कीमतों में हालिया इजाफा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए खतरनाक हो सकता है। इंडस्ट्रियल सहूलियात ना मिलने की वजह से हम खिते में कमजोर हो रहे हैं, जबकि दीगर ममालिक कई गुना मजबूत होते जा रहे हैं। जब भी आपकी बिजली की प्राइस बढ़ेगी तो आपने जितना रॉ मटेरियल जितनी फैक्ट्रियों से सोर्स करें, ना कि सिर्फ हमारी अपनी फैक्ट्री बल्कि जिन हमारे अलाए जो हैं जिनसे हम रॉ मटेरियल सोर्स कर रहे हैं उनकी भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो जब कॉस्ट बढ़ेगी तो ये पूरी सोसाइटी के अंदर आपका प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाता है। दैट्स मीन कि आपकी इन्फ्लेशन बढ़ गई, और इन्फ्लेशन जैसी बढ़ेगी, एक तो इंटरनेशनली हम कंपेटिटिव नहीं रहेंगे, हमें ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। साबिक चेयरमैन PHMA काशिफ ज़िया ने कहा कि IMF की शराइत हमारी इंडस्ट्री को निगल जाएंगी। एक्सपोर्टर हजरात इंडस्ट्री को पहले ही बमुश्किल घसीट रहे हैं। हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं। नो डाउट गवर्नमेंट मुश्किल हालात में है, गवर्नमेंट हमेशा IMF की कंस्ट्रेंट से तो बाहर निकल नहीं सकती, और IMF की शराइत है, ये हमें भी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन गवर्नमेंट को भी सोचना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का पार्ट है। बिजली गैस की प्राइसेस को लेवल पे रखना ये गवर्नमेंट का पार्ट है। एक्सपोर्टर्स का कहना था कि दुनिया में हर मुल्क अपने एक्सपोर्टर्स को रियायत, सहूलत और रिलीफ देता है, जबकि हम अपनी इंडस्ट्री को बचाए रखने के हवाले से परेशान हैं। कैमरा टीम के साथ शराज भट्ट, CT41 फैसलाबाद। फैसलाबाद के पोश इलाके सूसा रोड पर ताजरों की अक्सरियत टैक्स अदायगी से गुरेज़ां। सूसा रोड पर बड़े ब्रांड, सेंट्री स्टोर्स, होटलों, शोरूम्स और दफातर की भरमार, लेकिन 71% ताजरों ने साल 2022 में टैक्स ही नहीं दिया। देखते हैं उमैर असमत की रिपोर्ट। सरकारी हस्पतालों में सहूलियात की अदम दस्तयाबी। फैसलाबाद के तमाम अस्पताल जिगर का साइज मापने वाली मशीन फाइब्रो स्कैन से महरूम हैं। जिगर के अमराज में मुबतला मरीज निजी अस्पतालों और क्लिनिक से टेस्ट करवाने पर मजबूर हैं। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी कहते हैं फाइब्रो स्कैन मशीन बहुत जरूरी है। लीवर सेंटर के साथ हमारा इल्हाक है, मगर वहाँ मशीन खराब है। आपको शायद पता हो कि हमारे पास एक लीवर सेंटर है DHQ हॉस्पिटल में, जो लीवर फाउंडेशन जो है रन कर रही है, और ये हमारे साथ कोलैबोरेशन में है। और हमारे DHQ में जितने भी हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं लीवर के हवाले से, जो उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको वो लीवर सेंटर देखता है। वहाँ पे एक फाइब्रो स्कैन मशीन रही है और वो काम करती रही है।
अलाइ DHQ और जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद में फाइब्रो स्कैन टेस्ट की सहूलत मुयसर न होने से मरीजों का इलाज मुतासर हो रहा है। वाइस चांसलर प्रोफेसर जफर अली चौधरी का कहना है कि मुखैर हजरात से या फिर अपने फंड से मशीन खरीदी जाएगी, जो कि जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद को फराहम की जाएगी। आने वाले 1-2 महीने के अंदर हम ये फाइब्रो स्कैन मशीन या तो हमारे गुलाम मोहम्मद आबाद हॉस्पिटल में आएगी, क्योंकि हमारा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी यूनिट वहाँ पे है और वहाँ पे इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि अगले 1-2 महीने में इसको प्रोक्योर करें। अगर गवर्नमेंट लेवल पे हमें मिल गई तो ठीक है, वरना हम इसको डोनेशन बेसिस पे ले लेंगे। प्राइवेट क्लिनिक्स और अस्पतालों में 5,000 रुपए का फाइब्रो स्कैन टेस्ट किया जा रहा है। कैमरामैन जुनैद अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। महकमा कस्टम फैसलाबाद का रात गए गुमटी चौक सर्कुलर रोड पर वाइम टायरों की दुकानों पर छापा। स्मगलशुदा टायरों के इतला मौसूल होने पर छापा मारा गया। ताजिर बरादरी कस्टम के खिलाफ सरापा एहतजाज, सर्कुलर रोड ब्लॉक करके मुजाहरा किया गया। महकमा कस्टम ने थाना रेल बाजार पुलिस के हमरा टायरों की दुकानों पर छापा मारा। चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट का कहना था कि महकमा कस्टम ने गैर कानूनी तौर पर छापे मारे। रात के पहर दुकानों के ताले तोड़े जा रहे हैं, जिस हर गिर्द दुरुस्त नहीं मानते। चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट का मजीद कहना था कि दिन के औकात में दुकानों की चेकिंग की यकीन दहानी पर ई कस्टम और ताजरों के दरमियान मुज़ाकरात तय पा गए हैं। फैसलाबाद में कानूनी तरीके से मुश्किल गैर कानूनी तरीका आसान। पासपोर्ट ऑफिस के बाहर खड़े एजेंट शहरियों को लूटने में मसरूफ़। कागजात जमा करवाने हों या लंबी कतारों से बचना हो, एजेंट पासपोर्ट ऑफिस की मिली भगत से शहरियों को लूट रहे हैं। तफसीलात देखिए अली नारो की रिपोर्ट में। वतन अजीज़ में अगर आपने कोई लीगल काम करना है, अच्छे तरीके से करना है, कानूनी तरीके से करना है, तो उसके लिए आपको बेशुमार दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आपने 2 नंबरी से काम लेना है तो वो काम आपका मिनटों में हो जाएगा। उसकी वाज़ेह मिसाल आपको अभी दिखाते हैं कि अगर आपने पासपोर्ट बनवाना है कानूनी तरीके से, आपको लंबी कतार का सामना करना पड़ेगा, आपकी जल्दी बात नहीं सुनी जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट्स उनको कंप्लीट नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आपने यही काम थोड़े से पैसे बढ़ाकर ठीक पासपोर्ट ऑफिस के बाहर खड़े एजेंट और जो उनके टाउट हैं उनसे करवाना है, तो ना आपको किसी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, बल्कि चंद आपने पैसे बढ़ाने हैं, आपका पासपोर्ट भी खुद बनेगा। आपने कोई इलीगल कोई डॉक्यूमेंटेशन में कुछ इधर रद्दोबदल भी करवाना है तो उसका भी कोई हरज नहीं है। दिन दिहाड़े ये डाका डाला जा रहा है, कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। हाँ जी, पासपोर्ट यार लाइना ही बढ़िया, कोई लाइना तो बगैर 30 साल का। फीस कितनी है वैसे? आपने फीस नहीं पे की है? नहीं, डॉक्यूमेंट्स में लैके आने सारे पता ही नहीं है कख का भी। मैं क्या ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਟੇਬਲ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਆਇਓ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ। मैं फीस फूस फड़ लियावांगा ना, मैं सारा कुछ कर लियावांगा। की हिसाब किताब है इन्हां दा? ਨਾਰਮਲ ਦੀ 3000 ਹੈ, ਅੱਛਾ अर्जेंट ਦੀ 5000 ਤੇ ਲਾਈਨ ਲੋਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ? ਆਓ ਜਨਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਦੱਸੀ ਚੱਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ? ਦਿਖਾਓ ਜਨਾਤੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਦਿਖਾਓ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਦਾਰੇ ਲੋ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੇ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੋਗੇ? ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਮ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਣਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਵਾਲਾ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਬਣਿਆ? ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਨਦ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਨਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਗੈਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ। ਆਹੋ, ਉਹ ਹੋਈ ਹੈਗਾ। ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਵੀਰੇ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਲਾ ਨਾ। ਤੇਨਾਂ ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੈ। ਅੱਛਾ, ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਦੱਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ? ਵੈਸੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਨਾਰਮਲ ਦੀ 3000, अर्जेंट ਦੀ 5000। ਨਾਰਮਲ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਵਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਿਤਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ 3000। ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ 1996 ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਣਾ? ਐਡਰੈਸ ਕਿੱਥੇ ਦਾ? ਐਡਰੈਸ ਪੇਪਰਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਐਡਰੈਸ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਐਡਰੈਸ ਹੈ। उनका टोटल तेरा 6500 रुपये नॉर्मल का खर्चा हुआ। और ये आपके सामने सारी सूरत हाल है, एजेंट आपके सामने था, सारा कुछ उसने खुद बता दिया। अगर आपने पासपोर्ट यहाँ पर बनाने आना है कोई मसला नहीं है आपको, लेकिन अगर आपने कानूनी तरीके से बनाना है पासपोर्ट, तो आपको लाइन में भी लगना पड़ेगा, खारी का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन यही आपने ज़ायद पैसे देने हैं, एजेंट के हत्थे चढ़ना है आपने, तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। आपने पैसा देना है थोड़ा सा ज़ायद और आपका पासपोर्ट खुद तैयार होगा। सामने मैं आपके यहाँ पे आया हूँ, किसी को मैंने खुद नहीं बोला, मेरे पास आए हैं। ये इन इदारों का हाल है। आम शहरी को पासपोर्ट बनाने के लिए किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, ये आपको दिखा दिया है। अब ऐसा तो नहीं है कि अंदर इनके कोई बंदे मौजूद ना हों, खुद ऑफ़र करवाते हैं, सारे काम करेक्शन करवानी है, इलीगल काम करवाना है, कुछ भी करवाना है, पैसे आपने ज़ायद देने हैं, आपका पासपोर्ट बन जाएगा जी।
फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान। अस्पताल जिगर का साइज मापने वाली मशीन फाइब्रो स्कैन से महरूम। जिगर के अमराज से मुब्तला मरीज निजी अस्पतालों से टेस्ट कराने पर मजबूर है। तफसीलात जानिए अज़दार हुसैन की रिपोर्ट में। सरकारी अस्पतालों में सहूलियात की अदम दस्तयाबी। फैसलाबाद के तमाम अस्पताल जिगर का साइज मापने वाली मशीन फाइब्रो स्कैन से महरूम है। जिगर के अमराज में मुब्तला मरीज निजी अस्पतालों और क्लिनिक से टेस्ट करवाने पर मजबूर हैं। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी कहते हैं, फाइब्रो स्कैन मशीन बहुत जरूरी है। लीवर सेंटर के साथ हमारा इल्हाक है, मगर वहाँ मशीन खराब है। आपको शायद पता हो कि हमारे पास एक लिवर सेंटर है DHQ हॉस्पिटल में, जो लिवर फाउंडेशन जो है रन कर रही है, और ये हमारे साथ कोलैबोरेशन में है। और हमारे DHQ में जितने भी हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं लिवर के हवाले से, जो उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको वो लिवर सेंटर देखता है। वहाँ पे एक फाइब्रो स्कैन मशीन रही है और वो काम करती रही है। अलाइड DHQ और जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में फाइब्रो स्कैन टेस्ट की सहूलत मुयसर न होने से मरीजों का इलाज मुतासिर हो रहा है। वाइस चांसलर प्रोफेसर जफर अली चौधरी का कहना है कि मुखैर हजरात से या फिर अपने फंड से मशीन खरीदी जाएगी, जो कि जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद को फराहम की जाएगी। आने वाले 1-2 महीने के अंदर हम ये फाइब्रो स्कैन मशीन या तो हमारे गुलाम मोहम्मदाबाद हॉस्पिटल में आएगी, क्योंकि हमारा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी यूनिट वहाँ पे है और वहाँ पे इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि अगले 1-2 महीने में इसको प्रोक्योर करें। अगर गवर्नमेंट लेवल पे हमें मिल गई तो ठीक है, वरना हम इसको डोनेशन बेसिस पे ले लेंगे। प्राइवेट क्लिनिक्स और अस्पतालों में 5,000 रुपए का फाइब्रो स्कैन टेस्ट किया जा रहा है। कैमरामैन जुनैद अली के साथ अज़दार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। वाइस चांसलर GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल। हाई कोर्ट ने वाइस चांसलर डॉक्टर नासिर अमीन को काम करने से रोक दिया। गवर्नर पंजाब ने डॉक्टर नासिर अमीन को बतौर प्रो वाइस चांसलर तैनात किया था। आपको बता रहे हैं, वाइस चांसलर GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल। हाई कोर्ट ने वाइस चांसलर डॉक्टर नासिर अमीन को काम करने से रोक दिया। गवर्नर पंजाब ने डॉक्टर नासिर अमीन को बतौर प्रो वाइस चांसलर तैनात किया था। मजीद बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद को एक माह पहले ही वाइस चांसलर मिला था, जो कि दोबारा से अब उनको काम करने से रोक दिया गया है। इस हवाले से एक जो शहरी है उनकी तरफ से अदालत से रिजू किया गया, इनकी तैनाती को चैलेंज किया गया, जिस पर हुक्म तनाई जारी किया गया है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, और वाइस चांसलर डॉक्टर नासिर अमीन को काम करने से रोक दिया है। एक माह कबल इनको तैनात किया गया था गवर्नर पंजाब की तरफ से प्रो वाइस चांसलर की सीट पर, चूंकि वाइस चांसलर मुस्तकिल मौजूद नहीं है, इसलिए प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर नासिर अमीन ही बतौर वाइस चांसलर भी जिम्मेदारियां निभा रहे थे, लेकिन उनको बतौर वाइस चांसलर काम करने से रोक दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से। और अगली पेशी पर फरीकैन से जो है वो तलब कर लिया गया है उनको, और अपने अपने जो मौक़िफ़ हैं वो बयान किए जाएंगे, लेकिन ताहुकुम सानी उनको बतौर वाइस चांसलर काम करने से रोक दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए जहांगीर अशरफ। चेयरमैन PTI फैसलाबाद पुलिस की JIT में पेश ना हुए। थाना सिविल लाइन में दर्ज 9 मई के वाक़े के मुकदमे में तलब किया गया था। उधर झंग में गैर कानूनी अराजी अलॉटमेंट पर एंटी करप्शन में मुकदमे का मामला। चेयरमैन PTI की बहन उज़मा खान एंटी करप्शन फैसलाबाद में पेश। चेयरमैन PTI फैसलाबाद पुलिस की JIT में पेश न हुए। थाना सिविल लाइन में दर्ज 9 मई वाक़े के मुकदमे में तलब किया गया था। चेयरमैन PTI को पेश होकर शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया गया था। थाना सिविल लाइन के 2 एहलकारों ने जमान पार्क में चेयरमैन PTI को तलबी का नोटिस वसूल कराया था। थाना सिविल लाइन में 9 मई के पुरतशद्दुद एहतजाज पर दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। मुकदमा में आर्मी एक्ट की दफात भी शामिल है। थाना सिविल लाइन के मुकदमा में चेयरमैन PTI को बाकायदा नामजद किया गया है। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम चेयरमैन PTI की दोबारा तलबी का फैसला करेगी। उधर जंग में गैर कानूनी अराजी अलॉटमेंट पर एंटी करप्शन में मुकदमा का मामला। चेयरमैन PTI की बहन उज़मा खान एंटी करप्शन फैसलाबाद में पेश। उज़मा खान को 2 मुकदमात में पेशी के लिए बुलाया गया था। डॉक्टर उज़मा खान पर करोड़ों रुपए की अराजी गैर कानूनी तौर पर अपने नाम करवाने का इल्जाम है। उज़मा खान ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। उज़मा खान के वकील मलिक खालिद शफीक ने मुकदमात के हवाले से ब्रीफिंग दी। वकील मलिक खालिद शफीक कहते हैं 18,000 में एक किनाल की जगह उज़मा खान के नाम पर मुंतकिल हुई है। FIR में 7,700 किनाल लिखी गई है, जबकि कागजात में 1 किनाल लिखा है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जेल खाना जात और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट कायमा कमेटी का इजलास। जेलों में कैदियों को तालीमी सहूलियात फराहम करने के लिए कमेटी मेंबरान मुतारिक। चेयरमैन डॉक्टर इशफाक कहते हैं कि हम चाहते हैं कि कैदी बाहर आएँ तो जिम्मेदार शहरी बनकर नई जिंदगी की शुरुआत करें। चेयरमैन कमेटी डॉक्टर इशफाक और शफीक शाह ने कहा कि कमेटी मेंबरान जेलों में तालीमी सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दाम करेंगे। उनका कहना था कि कैदी कैद काट कर जब बाहर आएँ तो बतौर जिम्मेदार शहरी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकें।
پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تحت جی سی ویمن یونیورسٹی کے زیر اہتمام پنجاب والی بال لیگ 4 کریسنٹ اسپورٹس کمپلیکس میں ہونے والے میچز میں فیصل آباد اور لاہور کی ٹیموں نے اپنے اپنے میچز جیت لیے۔ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تحت کھیلوں کے مقابلے جی سی ویمن یونیورسٹی فیصل آباد کے زیر اہتمام پنجاب والی بال لیگ کے 2 میچز کریسنٹ اسپورٹس کمپلیکس فیصل آباد میں ہوئے۔ پہلے میچ میں فیصل آباد نے راولپنڈی کو 2-1 سے شکست دی، دوسرے میچ میں لاہور نے سیالکوٹ کو ہرا دیا۔ بہت اچھا پارٹیسپیٹ کیا، بہت اچھی تیاری تھی اور ہمارے میم نے جنہوں نے یہ آرگنائز کیا، اتنا اچھی یہ مطلب ایونٹس تھی، اتنی اچھی تیاری کی ہے، اور ہائر ایجوکیشن کمیشن جو اور پرائم منسٹر کا تھینک یو جو اس طرح کے پروگرامز آرگنائز کر رہے ہیں۔ انچارج سپورٹس فہمیدہ ایوب، تنویر حمید، رانا سلیم و دیگر آفیشلز بھی والی بال لیگ کے میچز کے دوران موجود رہے اور سپورٹس کے فروغ کے لیے حکومت اور ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔ 5 ریجن سے جو ہیں وہ ٹیمز آئی ہیں، جس میں لاہور، سیالکوٹ، ملتان، راولپنڈی اور فیصل آباد، 5 ریجنز کی ٹیم جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، اور میں یہاں پہ پاکستان والی بال فیڈریشن کی بھی بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے اپنے آفیشیلز ہمارے پاس بھیجے۔ ریجن کی ٹیمز بنائیں، پھر ریجن جو ہے اب پروونشل لیول پہ وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، پروونس جو ہے پھر وہ نیشنل میں جا کے پارٹیسپیٹ کریں، اور اس میں سے 22 کھلاڑی جو ہیں وہ چنے جائیں گے، اور یہ دیکھیں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے۔ پنجاب والی بال لیگ کے میچز 23 جولائی تک جاری رہیں گے، جس کی اختتامی تقریب ویمن یونیورسٹی فیصل آباد میں ہوگی۔ کیمرامین تصور عباس کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ محرم الحرام میں معصومان کربلا کی یاد میں نیاز اور لنگر کی تقسیم۔ ٹوٹیوں میں نظر و نیاز تقسیم کرنے کی روایت تاحال زندہ ہے۔ واقعہ کربلا کی یاد میں پیاس سے بلکنے والے معصوم شہزادوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی کجیوں ٹوٹیوں میں نیاز اور پانی تقسیم کرتے ہیں۔ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੁਝੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਮੁਹਰਮਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝੀਆਂ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੰਡੀਏ۔ کجیاں ٹوٹیاں بنانے کے لیے کمہار دور دراز سے چکنی مٹی تلاش کر کے لاتے ہیں۔ مٹی رات بھر بھگوئی جاتی ہے اور چک کے اوپر رکھی جاتی ہے۔ کمہار تیزی سے گھومتی ہوئی مٹی کو ہاتھ کی مہارت سے کجیوں اور ٹوٹیوں کی شکل میں ڈال دیتا ہے۔ ہم پہلے اس کو مٹی کو مختلف جگہوں سے تلاش کر کے لے کے آتے ہیں اور اس کو لا کر ایک رات بھگو کے رکھ دیتے ہیں، اور اگلے دن تیار کر کے مٹی کو ہاتھ کی مہارت کے ساتھ پھر تیار کرتے ہیں۔ مختلف نیاز گھروں میں بانٹی جاتی ہیں، لیکن جو کجی ٹوٹی کی نیاز ہے نا، وہ سب سے اچھی بچے بہت پسند کرتے ہیں، اور اس نیاز کو مختلف بہت دور سے لوگ ہم سے لینے آتے ہیں اور لے جا کر بچوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور بچے بہت شوق سے گھروں سے آ کے لے کے جاتے ہیں۔ صدیوں بعد بھی محرم الحرام میں لوگ کجیوں اور ٹوٹیوں میں کھیر، چاول، میٹھا پانی یا دودھ تقسیم کر کے معصومان کربلا کی قربانیوں کو یاد رکھے ہوئے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ وقاص جمیل، سٹی 41 سمندری۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔